Hey everyone, today we will discuss about the our environment. It is a chapter number 15 and NCRT review करेंगे. We have here the word environment. What is the environment जो हमारे surrounded present है वो सब environment है. Okay, you often being used on a television, newspaper आपने सुना होगा लोगों around by the people around us. These all kinds are our environment. Okay, चाहे वो abiotic things है या फिर biotic things है, जो भी हमारे surrounded है वो सब environment है. Our elder tell us the environment is not what is used to be earlier. Others says that we should work in a healthy environment. Yes, अगर हम बात करें तो environment को कैसे हम healthy बना सकते हैं, पूरा ये chapter आपको यही बताएगा. Global summit involving the development of developing countries are regularly held to discuss about the environmental issues. यस, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हमेशा इस बारे में डिस्कस करते रहते हैं अबाउट द इन्वायरमेंटल इश्यूज. यही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है. वी शैल बी स्टडीज हाउ द वेरियस कंपोनेंट इन अ एटमॉस्फेयर इंटरैक्ट विद द ईच अदर एंड दिस थिंग कि इन्वायरमेंट में कौन कौन से कंटेंट है जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं. हाउ आर इम्पैक्ट द इन्वायरमेंट. कुछ इन्वायरमेंट के लिए अच्छे हैं और कुछ इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है. यस, फर्स्ट वन इज अ इकोसिस्टम. व्हाट इज द इकोसिस्टम? सिंपल सी एक डेफिनेशन लिख देती हूँ मैं बच्चों आपके लिए. द इंट्रैक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट. ओके, तो नोट कर लीजिए इसको. The interaction between living and non-living component. Okay, living component is called a biotic component. Living thing is called a biotic component. And next one is abiotic things, and another one is abiotic. That means are non-living things. Okay, so interaction between a living and non-living component is called a ecosystem. What is the component of the ecosystem? Yes, there is a two component. First one is a biotic component and another one is a abiotic component. Okay, and all organisms, एक बार review करते हैं एनसीईआरटी को. All organisms such as a plant, animal, microorganisms and the human being as well as the physical surrounding interact with the each other and maintain a balance in a nature. Yes, अभी मैंने आपको बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ह्यूमन, ये सराउंडिंग एटमॉस्फेयर जो है, फिजिकल कंटेंट जो है, उसके साथ इंट्रैक्शन क्रिएट करके एक मेंटेनेंस दे रहे हैं अर्थ को, नेचर को. ऑल द इंटरैक्टिंग, अभी आगे आपको समझ में आएगा ये कैसे इंटर रिलेटेड है एक दूसरे के लिए, कैसे लाइफ पॉसिबल है, कैसे लाइफ पॉसिबल है इनके इंट्रैक्शन से, कह सकते हैं. एंड ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरमेंट from an ecosystem. Thus, an ecosystem consists of the biotic component. Yes, and comprising living organisms a biotic component. Yes, so we can say that uh, yes, interaction between a abiotic and biotic component is called a ecosystem comprising a physical factor. Yes, abiotic components क्या हो सकते हैं? Temperature, humidity and rainfall, soil and minerals content which are present in a soil. These are the abiotic component. And biotic components, all living organisms under categorized as a biotic components. For example, if you visit a garden, you will found, yes, you will find a different plants such as grasses, tree, flower bearing plants like a rose, jasmine, sunflower, and animals like a frog, insect, and birds. Yes, all these are the living organisms. Yes, these are interact with each other. Their growth non-living पे इनको
डिपेंड ही होना पड़ेगा, जस्ट लाइक अ टेम्परेचर, विंड, soil content, like minerals, humidities. Without this they cannot be survived, and the reproduction and the other activities are affected by the abiotic component of ecosystem. So a garden is an ecosystem. ठीक बात है, garden एक ecosystem है. Other types of ecosystem are the forest, pond, lakes. ये खुद बने हैं, गार्डन को हमने खुद प्रिपेयर किया है, ठीक है, इसको नेचर ने बनाया है. किसको? फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक्स. इसको किसने बनाया है? नेचर ने बनाया है. तो ये क्या हो जाएंगे? हमारी नेचुरल इकोसिस्टम. दीज आर द नेचुरल इकोसिस्टम. इफ वी टॉक अबाउट द सी, रिवर, all kind of ecosystem is a natural ecosystem. Another one, which one made by a human, is called a artificial ecosystem, like a garden, aquarium, crop field. Crop field is the largest man-made ecosystem. यस, क्वेश्चन आंसर को देखते हैं. यू माइट हैव सीन एन एक्वेरियम. लेट अस ट्राई अ डिजाइन वन. एक्वेरियम क्या है? दिस वन इज अ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन अ माइंड? वी क्रिएट एन इक्वली, यस, एक्वेरियम. एक्वेरियम को क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए? यस, वी फाइंड आउट फिशेज, वाटर, जार, एंड वाटर के साथ साथ उसके क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, एंड फूड कंटेंट चाहिए. यस, ऑक्सीजन कैसे प्रोवाइड करेंगे? पानी में जो डिजोल्व अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है उसको हमें अंदर से ही देना होगा. ओके, वी कैन प्रोवाइड ऑक्सीजन थ्रू ऑक्सीजन पंप. दिस वन इज कॉल्ड अ एरेटर. एयर को बबल के फॉर्म में निकालेगा, इज कॉल्ड अ एरेटर. अलग से फूडिंग देना पड़ेगा. ओके, फिश फूड अवेलेबल होता है, तो ये सब आपको बताया गया है यहाँ पे. And next one is if we add a few aquatic plant and animals, it can become a self-sustaining system. अगर हमने कुछ aquatic plant डाल दिया तो ये अपने आप चल जाएगा सिस्टम? नहीं, क्योंकि ये नेचुरली नहीं है, ह्यूमन ने बनाया है. कैन यू थिंक हाउ इज हैपन? नो. एन एक्वेरियम इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ ह्यूमन इकोसिस्टम. तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि ये इकोसिस्टम खुद ही चले. आपको ऑक्सीजन भी देनी होगी, आपको न्यूट्रिशन भी देना पड़ेगा. कैन वी लीव aquarium such as after we set up? Why does it have to be clean once in a while? हमें क्यों उसको क्लीन करने की जरूरत पड़ती है? जो भी डेड ऑर्गेनिजम्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं उनको हमें हटाने की जरूरत होती है. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वहां पे नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल डिकम्पोजिशन नहीं हो रही है. ओके, वेयर इज अ एब्सेंट ऑफ डिकम्पोजर्स. वहां पे डिकम्पोजर्स नहीं है, तो हमें क्या करना है? उसको क्लीन करना पड़ेगा. ओके, next one is we have seen in our earlier classes that is organisms can be grouped as a organisms की बात करें, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है बेटा, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. ओके, प्रोड्यूसर्स example is a green plant and a blue green algae. Okay, these can be synthesize their own food. Blue green algae also called as cyanobacteria. Okay, they can synthesize their own food by utilizing a sunlight and chlorophyll, and like utilize, कह सकते हैं कि soil का content is a water and CO2 from the atmosphere. इसको लेके ग्लूकोज कंटेंट बना देते हैं. कंज्यूमर्स इज डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एंड अ डिकम्पोजर्स, जब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर डेड हो जाएंगे, इनको डिकम्पोज करके सॉइल में मिक्स करने का काम डिकम्पोजर्स का होगा, अकॉर्डिंग टू द मैनर इन विच ऑब्टेन देयर सब्सटेंसेस फ्रॉम द एनवायरमेंट. Okay, let us recall what we have learned through a self-sustaining ecosystem created by us above. अभी हमने देखा था कि अगर हम इकोसिस्टम खुद बनाएं तो हमें क्या क्या करना होगा. Which organisms can make organic compound? Yes, कौन बनाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड? प्लांट्स ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं. ओके, मेनली अगर मैं बात करूं, ब्लू ग्रीन एल्गे भी इसमें इन्वॉल्व है. क्लोरोफिल होना चाहिए सनलाइट को ट्रैप करने के लिए, तभी ये प्रोसेस हो पाएगी. यस,
ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक अ शुगर बनेगी और प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनी है यानी CO2 और वाटर से बनी है। रेडिएशन का यूज करके, अभी मैंने आपको बता दिया था, सनलाइट का यूज करके, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ऑल ग्रीन, तो पूछ रहे हैं विच ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया बच्चों। ऑल ग्रीन प्लांट एंड सर्टेन बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, कैन बी प्रोड्यूस देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, कम अंडर दिस कैटेगरी, ये भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इज कॉल्ड अ प्रोड्यूसर्स। Organisms depend on the producers either directly or indirectly, ये भी हमने बात डिस्कस कर ली। These organisms which consume the food produce either directly from the producers or indirectly feed by the other consumers. Yes, तो ये बात ठीक है। कंज्यूमर्स जो है वो डायरेक्टली प्लांट को भी खा सकते हैं, जैसे हार्बीवोर्स, और हार्बीवोर्स को खाने वाले हैं कार्निवोर्स। एक्चुअली हार्बीवोर्स ने क्या खाया, प्लांट को खाया, तो अगर प्लांट ही अवेलेबल नहीं होता तो हार्बीवोर्स भी नहीं होते, तो ये एक सीक्वेंस बन जाएगा। कंज्यूमर्स कैन बी क्लास्ड वेरियस एज अ हार्बीवोर्स, कंज्यूमर को डिवाइड करेंगे हार्बीवोर्स जो कि प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं, कार्निवोर्स जो कि हर्बीवोर्स पे डिपेंड करेंगे, ओमनीवोर्स जो प्लांट और एनिमल दोनों पे डिपेंड करते हैं, एंड नेक्स्ट वन इज अ पैरासाइट। पैरासाइट्स आर द दोज ऑर्गेनिजम्स विच सर्वाइव ऑन होस्ट, विच सर्वाइव ऑन अ लिविंग होस्ट, याद रखेंगे, विच सर्वाइव ऑन अ लिविंग होस्ट। Can you give an example of each category of a consumer? Yes, herbivores, goat and ox, cow, carnivores, tiger, omnivores, rat, crow, humans. And imagine the situation where do not clean the aquarium. ये बात हमने डिस्कस कर ली थी। Some fishes and plant have died अगर हो जाएंगे, अगर आपने क्लीन नहीं किया। Have you ever through what happen when the organisms die? The microorganisms comprising bacteria and fungus break down the dead and decay remains. ठीक है, dead and decay remains ऐसा नेचुरल इकोसिस्टम में होगा कि वहां पे कौन प्रेजेंट है, डिकम्पोजर्स प्रेजेंट है। डिकम्पोजर्स करते क्या है, डिकम्पोजर्स डेड एंड डीके के ऊपर सरवाइव करते हैं और अपने एंजाइम्स को बाहर रिलीज करके उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। जो ये मैटर है, डेड एंड डीके मैटर है, उसको ब्रेक डाउन करते हैं। डेड एंड डीके मैटर या तो प्लांट का होगा या फिर एनिमल्स का होगा, तो हम कह सकते हैं डेड एंड डीके मैटर इज ऑलवेज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करके ये सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं। याद रखना, द दिस वन ब्रेक डाउन की प्रोसेस करेंगे डेड रिमेन्स को, एंड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द डिकम्पोजर्स। कौन से एग्जाम्पल है, बैक्टीरिया एंड फंजाई आर द एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजर्स, as they break down the complex organic substance into a simple inorganic substances में तोड़ देते हैं ताकि वो उनको एब्जॉर्ब कर पाए। ओके, दैट गो इनटू द सॉइल। यस, कुछ कंटेंट सॉइल्स में भी चले जाएंगे, एक्चुअली तोड़ तो अपने लिए रहे होते हैं लेकिन वो कंटेंट सॉइल को मिल जाते हैं, एंड इतने छोटे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, सॉल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, तो प्लांट की रूट्स इसको इजीली ग्रैब भी कर सकते हैं, वाटर के साथ कंज्यूम कर सकते हैं। ओके, एंड दैट गो इनटू अ सॉइल एंड आर यूज अप once more by the plants. Yes, plant के थ्रू यूज हो जाएगा। what happened to the garbage जो घरों का गार्बेज, कूड़ा करकट, एंड द डेड एनिमल्स, प्लांट्स अगर एब्सेंट हो जाए तो क्या होगा, सॉइल रिप्लेनिश नहीं हो पाएगी। विल द नेचुरल रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल टेकन प्लेस, नहीं हो पाएगा। इवन इफ डिकम्पोजर्स आर नॉट देयर, तब क्या होगा, डिकम्पोजर्स क्रिएट अ स्पेस फॉर अ न्यू generation. Okay, and decomposers is act as a replacement of the soil. Okay, decomposers soil को या न्यूट्रिएंट को एक साइकिल के फॉर्म में भी सर्कुलेट करने का काम कर रहे हैं। ओके, सो decomposers is a most important for a natural ecosystem. Why? Creating an yes, aquarium, did you take care not to put an aquatic animals which would eat other? ठीक है, आपने ऐसा कोई aquatic animal नहीं रखा है जो कि एक दूसरे को खा पाए। What would have happened otherwise? नहीं तो क्या होगा, एक एनिमल, एक फिश दूसरे फिश को खा जाएगी, और इसीलिए हम अलग से फूडिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं।
Make a group and discuss how each of above group organisms are depend on each other. Right, aquatic organisms in order to eat whom from a change. Yes, चेन. अगर मैं बात करूँ ना पानी में रहने वाले प्लांट को ना फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों? फाइटोप्लैंक्टन. एंड यहाँ पे छोटे छोटे एनिमल्स जो इस फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं इज कॉल्ड अ जूप्लैंक्टन. दिस वन इज कॉल्ड अ जूप्लैंक्टन. जूप्लैंक्टन को स्मॉल फिश लिख दो. स्मॉल फिश. स्मॉल फिश को बड़ी फिश खा जाते हैं. Would you consider any one group of the organisms to be primary importance? Would you consider any one group of organisms to be primary importance? Yes. कौन सा ग्रुप इसमें प्राइमरी इंपॉर्टेंस रखता है? प्लांट्स. बिकॉज प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स. प्लांट ही अर्थ पे एनर्जी लेकर आ रहे हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज अ फूड चेन एंड फूड वेब. What is a food chain? Food chain is a series. Food chain is a series in which a food distribution take place step by step. Okay, this one is a called a trophic level. Each and every level which are present in a food chain is called a trophic level. This one is a trophic level. सो दिस वन इज अ ट्रॉफिक लेवल. तो आप बताएंगे ईच स्टेप और लेवल ऑफ अ फूड चेन इज कॉल्ड अ ट्रॉफिक लेवल. ये हो गई ट्रॉफिक लेवल की डेफिनेशन. एंड व्हाट इज अ फूड चेन? द सीरीज or the organisms taking part at a various biotic level or a trophic level from the food chain. Okay, तो ये भी फूड चेन की डेफिनेशन ही है. आप ऐसे याद रखेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द food from one trophic level to the another trophic level is called a food chain. Food chain में 3 trophic level है यहाँ पे 5 trophic level है, यहाँ पे 4 trophic level है. Okay, so these are the trophic levels. Yes. नेक्स्ट वन द ऑटोट्रॉफ्स और द प्रोड्यूसर आर द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. यस, ऑब्वियस सी बात है कि प्रोड्यूसर हमारे सबसे पहले आएंगे. अर्थ पे एनर्जी लेके आने का काम प्रोड्यूसर का है. एनर्जी का सोर्स क्या है? सोलर. दिस वन इज अ अल्टीमेट और अ अनलिमिटेड. एंड दे फिक्स अप सोलर एनर्जी को फिक्स कर रहे हैं एंड मेक इट सुटेबल फॉर अ हेट्रोट्रॉफिक. यस, इसको किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? फिक्स कर रहे हैं हेट्रोट्रॉफ्स और कंज्यूमर्स के लिए. The herbivores or the primary consumers come at the second one. क्या आएंगे हमेशा? herbivores. प्लांट को खाने वाले herbivores. And then one small carnivores किस में आ जाएंगे? Small carnivores is a secondary consumers. Yes, अगर मैं बात करूँ this one is a secondary consumer. प्राइमरी दिस वन, सेकेंडरी कार्निवोर्स ही होगा हमेशा. प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा हार्बिवोर्स होगा. एट द थर्ड एंड लार्ज कार्निवोर्स और टर्जरी कंज्यूमर्स फ्रॉम द फोर्थ ऑफ लेवल. लार्ज कार्निवोर्स कहाँ पर आ जाएंगे? फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर आ जाएंगे. We know that the food we eat act as a fuel to provide us energy to do work. Yes, food actually हम क्यों consume कर रहे हैं? For is it is a provide energy in our body. This one is a kind of a fuel जो हमारी body को energy देगा. तो बाहर से food तो चाहिए चाहिए. Thus, the interaction among a various component of the environment involves flow of energy from one component to the another system. Yes, for another one component of a system to the another component of the system. ये सब क्या कर रहे हैं? एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं. ओके, दिस वन ट्रांसफर द एनर्जी कंटेंट. यस, so energy are transferred from one trophic level to the another trophic level. We can say that. And as we have our studies, the autotrophs capture the एनर्जी प्रेजेंट इन अ सनलाइट. ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि ऑटोट्रॉफ्स यानी प्लांट्स ही अर्थ पे एनर्जी लेकर आते हैं. एनर्जी का सोर्स क्या है? सनलाइट, सोलर एनर्जी. एंड इट्स कन्वर्ट इनटू अ केमिकल एनर्जी. प्लांट कैन बी कन्वर्ट अ light energy into a chemical energy.
This energy support all the activities of the living world. तो ये केमिकल एनर्जी क्या है, एक्चुअली ग्लूकोज बना देंगे. ओके. एंड तो ये पार्ट क्या है, प्लांट ने बनाया है जो कि आगे अर्थ पे सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा. फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स द एनर्जी गोज टू अ हेटरोट्रॉप्स. यस, ऑटोट्रॉप से हेटरोट्रॉप्स की तरफ एनर्जी जाएगी. और जब हेटरोट्रॉप्स डेड हो जाएंगे तो डिकम्पोजर्स वापस उसको अर्थ में या फिर सॉइल में मिक्स कर देते हैं. एक्चुअली डिकम्पोजर्स क्या कन्वर्ट करते हैं, मैंने आपको बताया था, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में. सो एक्चुअली ये अपना खाने के लिए ऐसा कर रहे होते हैं, लेकिन कंटेंट सॉइल में मिक्स भी होते जाते हैं. However, as we saw the previous chapter, like a source of energy, when one form of the energy can be changed into the another. Yes, one. This one is absolutely correct about the one form of energy is converted to the another one. That means energy neither be created nor be destroyed, but it can be converted from a one form into the another form. Some energy is lost to the environment in form in which कैन नॉट बी यूज अगेन. कुछ एनर्जी इन्वायरमेंट में यस लॉस हो जाती है और वो कभी यूज नहीं हो पाती. द फॉलो दैट मीन्स द फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन अ वेरियस component of the environment has been extensively studied. It has been found that कितना परसेंट एनर्जी आगे मूव करेगी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में. सबसे पहले हम ग्रीन प्लांट की बात करते हैं. दैट वन इज अ प्रोड्यूसर्स सन से कितना परसेंट एनर्जी ले पाते हैं. अगर मैं बात करूँ तो सन से प्रोड्यूसर 1% एनर्जी ही कंज्यूम कर पाते हैं. ऑलवेज रिमेंबर. बट आगे हर एक ट्रॉफिक लेवल में प्लांट के बाद अर्थ पे अगर मैं बात करूँ तो प्लांट के बाद हर किसी के पास 10% एनर्जी ही पहुंचेगी. हर ट्रॉफिक लेवल में 10% एनर्जी का ही ट्रांसफर होता है. इफ अ क्वेश्चन अराइज बाकी की बची हुई 90% एनर्जी कहाँ चली गई, तो 90% एनर्जी का हो जाता है लॉस. ओके. इसकी बॉडी में इफ आ प्राइमरी कंज्यूमर, इसकी बॉडी में डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिज्म हो रही होंगी, उसमें यूज हो जाएगा. रेस्पिरेशन बोलते हैं उसको, रेस्पिरेशन में यूज हो जाएगा. वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस हो जाएगी एनर्जी. यानी कि 90% एनर्जी तो इसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही कंज्यूम हो जानी है. बची हुई 10% एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में चली जानी है. The green plant in a terrestrial ecosystem capture about a 1% of energy from sunlight. जो कि पत्तियों पे पड़ती है, it convert into a form of food like a glucose and starch के form में store हो जाएगी. When green plant are eaten by a primary consumer, a great deal of energy is lost as a heat to the environment. Yes, तो बहुत सारा अमाउंट हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है. सम अमाउंट ऑफ गोज इनटू अ डाइजेशन, यस, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए एंड ड्यूरिंग अ वर्क, and the rest goes towards the growth and reproduction. Even an average of 10% of a food eaten is turned into its own body. तो 10% जो बचा है वो उसकी बॉडी बनाने के काम कर रहा है. दैट मेक अवेलेबल फॉर अ नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर. यस, तो 10% जो उसकी बॉडी बनाने का काम कर रहा है फूड, वही अवेलेबल हो पाएगा नेक्स्ट जनरेशन या फिर नेक्स्ट लेवल बोलेंगे, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए. Therefore, 10% can be taken as a average value of the amount of organic matter. Yes, this one, 10%. This is the percentage at each step is reached the next level of the consumer. Since so little energy is available for the next level of consumers, only 10% is available for a next generation. So the food chain generally consists of a, इसीलिए आपको food chain के अंदर जो level है, it's only present a 3 or 4 steps. Food chain में 3 और 4 step, अगर इससे ज़्यादा steps हो जा रहे हैं food chain में,
तो क्यों नहीं होते इतने इससे ज़्यादा स्टेप? क्योंकि एनर्जी जो है वो सिर्फ 10% ही आगे जनरेशन में जानी है। लास्ट वाला जो ट्रॉफिक लेवल है, लास्ट ट्रॉफिक लेवल जो है उसके पास एनर्जी बहुत कम बचेगी। अभी मैं एक कैलकुलेशन में दिखाऊंगी, यहाँ पे एनर्जी बहुत कम बचेगी, अबाउट कितना परसेंट पहुंचती है। इससे ऊपर वाले को और एनर्जी कम मिलेगी। तो food chain generally have a 3 or 4 steps. The loss of energy at each step is so great that very little usable energy remain after 4 trophic level. तो यही बता रहे हैं, आप अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर यही लिख सकते हैं, क्योंकि जो लास्ट ट्रॉफिक लेवल है या फिर फोर्थ ट्रॉफिक लेवल के बाद जो आएगा उसके पास एनर्जी बहुत कम पहुंचेगी। A very little usable energy remains आफ्टर 4 ट्रॉफिक लेवल के बाद एनर्जी बहुत कम बचेगी। यस, देयर आर जनरली अ ग्रेटर नंबर ऑफ द इंडिविजुअल एट अ लोअर ट्रॉफिक लेवल। अगर मैं ऐसे नंबर ऑफ पिरामिड देखूं तो नंबर ऑफ पिरामिड मुझे हमेशा ये इस तरीके से दिखाई देगा, अपराइट दिखाई देगा, जब तक कोई नेचुरल डिजास्टर ना हो, जब तक कोई पैरासाइट आके ना लगे। हमेशा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन यही बोलेंगे दिस वन इज अपराइट किस कंडीशन में? नंबर ऑफ पिरामिड। तो किसके नंबर हमेशा ज़्यादा होंगे? प्लांट्स ज़्यादा होते हैं, प्रोड्यूसर ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ प्लांट। फिर उसके बाद हार्बीवोर्स, आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स, एंड प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स के नंबर कम होते जा रहे हैं, एंड टर्शियरी कंज्यूमर उससे भी कम, क्वाटरनरी कंज्यूमर उससे भी कम। तो ऊपर वाले सेक्शन में अगर हम देखें, टाइगर, हॉक, इन सब के नंबर आपको कम दिखाई देंगे। लाइन, टाइगर, हॉक, इनके नंबर कम दिखाई देंगे जो ऊपर टॉप पे हैं। द लेंथ ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फूड चेन इज वेरी वेरी ग्रेटली। लेंथ वेरी कर सकती है। ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय, ये अब फूड वेब की बात बता रहे हैं आपको। फूड चेन ने तो ये डिक्लेयर कर दिया, फूड चेन इज ऑलवेज इन अ यूनी डायरेक्शनल। याद रखेंगे, नोट भी कर लेंगे बुक में। यूनी डायरेक्शनल क्या है? यूनी डायरेक्शनल फूड चेन। फूड चेन आपको बताती है कि एक प्रे कैन बी ईटन बाय अ वन प्रेडेटर। प्रे मतलब होता है शिकार, प्रेडेटर मतलब शिकारी। दैट मीन्स एक प्रे जो है वो एक प्रेडेटर के थ्रू ही खाया जा सकता है, कोई दूसरा प्रेडेटर उसको नहीं खा सकता। ओके, तो ये वाली बात एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है, इसीलिए फूड वेब का फॉर्मेशन हुआ। फूड वेब आपको क्या बताता है? लेकिन फूड चेन और फूड वेब दोनों को सेपरेट सेपरेट आपको पढ़ना है और दोनों में डिफरेंस भी क्रिएट करना है। ठीक है, तो फूड चेन को भी हम गलत नहीं कह सकते और फूड वेब को भी गलत नहीं कह सकते, बोथ आर करेक्ट, अपने प्लेसेस पे दोनों करेक्ट है। ईच ऑर्गेनिजम्स इज जनरली ईटन बाय अ, यस, एक ऑर्गेनिजम्स कैन बी ईटन बाय अ टू और मोर काइंड ऑफ अ प्रेडेटर, और organisms which in a turn are eaten by a several other organisms. So instead of a straight line of food chain is always straight in line, but food web is a network. The relationship can be shown as a series of branching line. That one is a network of content is called a food web. So अगर एक सिंपल सी डेफिनेशन की बात करें, there are the several interlinked food chain is called food web. There are the several interlinked food chain. There are the several interlinked food chain is called, बहुत सारी food chain को मिला के एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे तो इसको कहेंगे हम फूड वेब। There is a several interlinked food chain is called food web. Okay, फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम, यहाँ पे आपको जो एनर्जी फ्लो का डायग्राम दिखाया हुआ है, दिस वन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक प्रेडेटर कैन बी ईटन बाय अ मोर
एक prey can be eaten by a more predator is a snake, is can be eaten by a hawk, and this one is a peacock. ठीक है, तो mice can be eaten by a cat, owl and snake. तो यहाँ पे जो फूड वेब है यही बता रहा है आपको, देयर इज अ सेवरल इंटरलिंक्ड फूड चेन. फ्रॉम एनर्जी फ्लो डायग्राम टू थिंग्स बिकम क्लियर. दो चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए. फर्स्टली द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल. Okay, the flow of energy is unidirectional. Always remember, the flow of energy is unidirectional. The energy that is captured by a autotrophs does not revert back. ऐसा क्यों है यूनिडायरेक्शनल है? जो एनर्जी प्लांट ने ली है सन से, ऐसा तो नहीं है ना कि सन भी प्लांट से वही एनर्जी ले लेगा, या फिर ग्रेसोपर ने प्लांट को खाया है तो प्लांट भी ग्रेसोपर को खा लेगा. नो. तो एनर्जी इज ओनली अ यूनिडायरेक्शनल, रिवर्ट नहीं हो रही है ये प्रोसेस. ओके. एंड सो देयर आर, यहाँ पे दिखाया हुआ भी है, कैप्चर बाय एन ऑटोट्रॉप्स. जो एनर्जी ऑटोट्रॉप से कैप्चर हुई डज नॉट रिवर्ट बैक टू द सोलर इनपुट, यानी सन के पास तो वापस नहीं जा रही है ये एनर्जी, विच इज पासिस टू अ नेक्स्ट लेवल, विच इज पासिस टू अ हार्बीवोर्स. हार्बीवोर्स डज नॉट कम बैक टू द ऑटोट्रॉप्स. हार्बीवोर्स तो ये एनर्जी ऑटोट्रॉप्स को नहीं दे रहे हैं. एज इट्स मूव प्रोग्रेसिवली थ्रू अ वेरियस ट्रॉफिक लेवल, इट इज नो लॉन्गर अवेलेबल टू अ प्रीवियस लेवल. ठीक है, आगे आगे फॉरवर्ड होती जाएगी, नई आगे आगे नई ट्रॉफिक लेवल के लिए फॉरवर्ड होती जाएगी, पीछे बैकवर्ड नहीं आ रही है. एंड सेकेंडली, द एनर्जी अवेलेबल at a each trophic level get diminished, okay, progressively due to the loss of energy. जो 90% मैंने आपको बताया वो डिमिनिश होती जा रही है, सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे नेक्स्ट के लिए अवेलेबल हो रही है. ओके, तो ये बार बार आपको यहाँ पे डिफाइन किया गया है. Another interesting aspect of the food chain is how unknowingly some harmful chemicals enter in our body. अब मैं यहाँ पे एक बात बता रही हूँ कि टॉक्सिसिटी अगर कहीं पे आ जाती है तो हर एक ट्रॉफिक लेवल में टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, टॉक्सिसिटी का कंटेंट बढ़ता जाता है. Okay, so is called a biological magnification. The accumulation of the toxic substance in each and every level is called biological magnification. मैग्नीफायर क्या होता है? बड़ा करके देखने के लिए होता है. तो मैग्निफिकेशन इसीलिए साइंटिस्ट ने नाम दिया है ताकि आप इसको समझ पाए. टॉक्सिसिटी बढ़ती जाती है ईच एंड एवरी ट्रॉफिक लेवल में. आप देखेंगे तो टॉक्सिसिटी बढ़ती जा रही है. और एनर्जी की बात करें तो एनर्जी कम होती जा रही है, सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो रही है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में. अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ द फूड चेन, तो आपको ये भी बताया मैंने कि हार्मफुल केमिकल्स अगर फूड चेन में कहीं पे आ जाते हैं तो वो बढ़ते जाएंगे. ठीक है, जैसे कि वाटर पॉल्यूशन में आपने 9th क्लास में पढ़ा था. वन ऑफ द रीजन इज यूज टू अ सेवरल पेस्टिसाइड्स. जो प्लांट आई मीन फार्मर जो पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं वो नदियों में आ जाते हैं और एक्वाटिक लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं. ओके, वाटर बॉडीज में आने के बाद उनकी टॉक्सिसिटी का अकुमुलेशन होता जाएगा, हर एक ट्रॉफिक लेवल पे वो बढ़ते जाएंगे. प्रोटेक्ट अवर क्रॉप्स फ्रॉम अ डिजीज, पेस्टिसाइड्स यूज किए थे. दीज केमिकल इधर वॉश डाउन इनटू द सॉइल, या तो वो सॉइल में चले जाएंगे या फिर अगर बारिश आई है पानी के साथ बह के वाटर बॉडीज में चले जाते हैं. From the soil, these are absorbed by the plant along with the water and minerals and from the water bodies taken up by the aquatic plant. ठीक है, तो अगर वाटर बॉडी में चले गए हैं तो एक्वाटिक प्लांट इसको कंज्यूम कर लेंगे, इस पानी को, इस टॉक्सिसिटी को. और इस एक्वाटिक प्लांट को कौन खाएगा? एक्वाटिक छोटे छोटे एनिमल्स खाएंगे. ठीक है, तो एक सीरीज में बता देती हूँ आपको. This one is, if we talk about the pesticides, these are the non biodegradable. Okay, इस पे डिकम्पोजर्स अपना वर्क नहीं कर सकते, इसको कोई डिग्रेडेट नहीं कर सकता. तो सबसे पहले मैं एक चीज बता रही हूँ यहाँ पे, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन.
magnification. The accumulation of toxicity, the accumulation, the accumulation of the toxicity, the accumulation of toxicity in each trophic level, in each trophic level, the accumulation of the toxicity in each trophic level is called, is increase, its toxicity is called, ठीक है, is called biological magnification. तो टॉक्सिसिटी बढ़ती जा रही है हर एक ट्रॉफिक लेवल पे, ये आपको मेंशन करना है. दिस एग्जांपल इज pesticide DDT. DDT if include in a crop field, तो क्या होगा, वो आगे वाटर बॉडीज में पहुंचने के बाद कहाँ पहुंचेगी. वाटर बॉडीज का मैं एक फूड चेन बनाती हूँ. वाटर बॉडी में एक्वाटिक प्लांट को बोलते हैं बच्चों फाइटोप्लैंक्टन. फाइटोप्लैंक्टन, फाइटो इज वर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाले छोटे छोटे एनिमल्स लाइक jellyfish, hydra is called as zooplankton. This one is called as zoo. Zoo is for an animal. Zooplankton. And another one is a small fish. And this fish can be eaten by a fish-eating bird, kingfisher, like. So birds की population decline होती जा रही थी क्योंकि toxicity सबसे ज़्यादा पहुंचेगी birds के पास. If here are 1 parts per million DDT, it's be distributed in a 2, suppose that, but कुछ ना कुछ बढ़ेगा ही. And here is a 3 ppm और यहाँ पे पहुंच सकता है 4 ppm. तो बर्ड्स की पॉपुलेशन डिक्लाइन होती जा रही थी, होती जा रही है ड्यू टू दिस हार्मफुल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का यूज करने पे. एक्वाटिक कंटेंट में कुछ भी आएगा तो वो आगे बढ़ता जाएगा ट्रॉफिक लेवल पे. अगर मैं टेरेस्ट्रियल की बात करूं तो फर्टिलाइजर्स प्लांट को दिए जाते हैं. इसका हार्मफुल इफेक्ट सबसे ज्यादा किस पे होगा, ह्यूमंस पे होगा. ठीक है, बिकॉज टॉक्सिसिटी ह्यूमन की बॉडी में आके बढ़ती जाएगी. एंड हेयर because chemicals and fertilizers are a non biodegradable. कोई भी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस अगर फूड चेन में आ जाता है तो वो फूड चेन में हमेशा बढ़ता जाएगा. These get accumulated progressively at each trophic level. याद रखेंगे, these get accumulated progressively at each trophic level. As human being occupy in a top level of the any food chain, the maximum concentration of chemical इसके पास पहुंचेगा, human के पास, क्योंकि human is the last one in a trophic level. This phenomena is known as the biological magnification. Okay, and this is the reason why our food grains such as wheat, rice, vegetable, fruits, even meat contain varying amount of the pesticide residue. So, and they cannot be always removed washing or the other means. तो ये बता रहे हैं हमारे फूड, वेजिटेबल्स, राइस, इन सब में बहुत सारे पेस्टिसाइड्स ऐड किए जाते हैं, जो कि ऐसा भी नहीं है कि वॉश आउट होके नदियों में चले जाते हो. बहुत सारे सॉइल के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और वो ह्यूमन बीइंग पे डायरेक्टली एक्ट कर रहे हैं, उनके पास बढ़ के पहुंच रहे हैं. सो व्हाट आर द नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट आर द ट्रॉफिक लेवल्स, बता देंगे ईच एंड एवरी लेवल्स जहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है फूड चेन की, उसको ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं. गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इन इट. बता सकते हैं, कोई भी एक फूड चेन बता देंगे. व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन अ इकोसिस्टम. ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. इकोसिस्टम पे डिकम्पोजर्स का बहुत बड़ा रोल है. ये न्यू जनरेशन के लिए स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल और डेड एंड डीके मैटर को डिकम्पोज करके अर्थ पे क्लीनिंग का भी काम कर रहे हैं. ओके, so these all kind of things. How do the activity
इफेक्ट्स द एनवायरमेंट, इन्वायरमेंट पे कैसे कैसे एक्टिविटी इफेक्ट डाल रही हैं. वी आर इंट्रीगल पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट, हम एनवायरमेंट का मेन इंटरनल पार्ट है. एंड चेंज इन एनवायरमेंट इफेक्ट अस एंड अवर एक्टिविटीज चेंज द एनवायरमेंट अराउंड अस. हमारी एक्टिविटीज हमारे आसपास के एनवायरमेंट को इफेक्ट डाल रही है. यस, वी हैव ऑलरेडी सीन इन अ क्लास 10th की, अगर मैं बात आई मीन 9th की बात करें, तो वहाँ पे हमने पॉल्यूशन वाला एक चैप्टर देखा था. ओके, देयर इज अ पॉल्यूटेड, 8 में भी आपने देखा होगा, पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन. दिस चैप्टर we shall looking at two of the environmental problem details. तो यहाँ पे इस चैप्टर में आपको दो environmental problem पढ़नी है. This one is a depletion of ozone layer and waste disposal. जिस depletion of ozone layer का मतलब है ओजोन लेयर में होल कॉज हो जाना, ओजोन लेयर का डैमेज होना. इज कॉल्ड अ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. तो ओजोन लेयर को डिप्लीट करने वाला जो मॉलिक्यूल है वो है क्लोरीन. क्लोरीन कंटेंट किसी में भी गैस के साथ या कैसे भी ऊपर अगर पहुंच जाता है तो ओजोन लेयर को डिप्लीट करना स्टार्ट कर देता है. ओजोन लेयर है क्या? ओजोन लेयर एक गैस की बनी हुई लेयर है. ओजोन गैस इज अ पॉइजनस गैस, लेकिन ये हमसे बहुत ऊंचाई पे है और एक बहुत अच्छा काम कर रही है, यूवी रेस को अब्जॉर्ब करने का काम. यूवी रेस को अर्थ पे नहीं आने देती, यूवी रेस से अर्थ को प्रोटेक्ट करती है. यूवी रेस के हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, अभी आप पढ़ोगे. यूवी रेस के हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, लाइक कॉजिंग स्किन कैंसर, कॉजिंग अ कैटरेक्ट इन आई, आई इन्फेक्शन भी लिख सकते हो आप. एंड म्यूटेशन, म्यूटेशन भी, एंड इम्यूनिटी का भी डिस्टर्बेंस. ओके, डिफेक्ट इन इम्यूनिटी ऑल्सो. So there is a O3. O3 is a ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बना होता है. ये मैं एक यहाँ पे रिएक्शन लिख देती हूँ, वो इससे इजी हो जाएगा आपके लिए. एंड देयर आर फॉर्मेशन ऑफ O3. O3 का फॉर्मेशन कैसे होगा? O2 जब वो ऊपर एटमॉस्फेयर में जाएगा, O2 ये यूवी रेडिएशन से ही बना होता है एक्चुअली. दिस वन इज मेड बाय यूवी रेडिएशन, और यूवी रेडिएशन का ही एब्जॉर्ब अपोज कर रहा है, ऐसे कह सकते हैं. O प्लस O रेडिकल में ब्रेक डाउन हो गया ये ऑक्सीजन, O प्लस O, और अब इसको अटैच कर दो इस O को दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से. ओके, तो O3 हमारा ऐसे प्रोड्यूस हो जाता है. दिस वन इज अ O3, दिस वन इज अ O3. Okay, so O3 is a ozone molecules formed by a three atom of oxygen, while as a O2, which are normally referred to oxygen, is essential for a aerobic form of life. सबके लिए जरूरी है, aerobic form of a life है. And ozone is a really poisonous gas. Okay, however, it is a high level of the atmosphere, stratosphere layer पे मिलेगा. तो ये हमारे लिए इफेक्ट नहीं दिखा पाता और अच्छा काम ये कर रहा है. It is a shield of a surface of earth from UV radiation, और अर्थ को बचा रहा है यूवी रेडिएशन से. सन के पास, सन से जो यूवी रेडिएशन निकलती है उसको एब्सॉर्ब करता है. दिस रेडिएशन इज हाईली डैमेज, इज हाईली डैमेजिंग. ये देखो यहाँ पे रिएक्शन भी दिखाई हुई आपको ना. डैमेजिंग द ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को डैमेज कर रही है ये, जैसे कि स्किन कैंसर कॉज हो जाना हाईली. देखिए यहाँ स्किन कैंसर, एंड आई डिफेक्ट्स ऑल्सो, इम्यूनिटी. ओके, ozone is a high level of higher level of the atmosphere is protect to a UV radiation acting on O2 molecule. The higher energy of UV radiation is split apart some molecule of oxygen. ये बता दिया मैंने, यूवी रेडिएशन से ही बनी होती है ओजोन लेयर. तो ओजोन आई मीन यूवी रेडिएशन इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर दिया. ये ऑक्सीजन का रेडिकल बन गया और ऑक्सीजन के साथ मिलके O3 बना दिया. द अमाउंट ऑफ ओजोन इन एटमॉस्फेयर बिगेन टू ड्रॉप. यस, ओजोन का अमाउंट जो है वो कम होता जा रहा है. 1980s की अगर मैं बात करूं तो
एंटार्क्टिका में होल कॉज हो गया था, एंटार्क्टिका में इसको देखा गया था। दिस डिक्रीज हैज बीन, हालांकि रिकवर हो सकता है, लेकिन किसका यूज हम सबसे ज्यादा कर रहे हैं? सिंथेटिक केमिकल जो एज अ कूलेंट का काम करता है रेफ्रिजरेटर और एसीज में। दिस वन इज अ CFC, याद रखेंगे, मेन कॉज ऑफ द ओजोन डिप्लीशन इज अ CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन फायर एक्सटिंक्शन में भी यूज किया जाता है। ओके, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन गैस का जो पार्ट है वो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है। इन 1887 द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, UNEP, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम सक्सेस इन फॉरगिंग and agreement to a free CFC production as a 1986 level, इससे कम करना है हमें। इसके लिए एक प्रोटोकॉल भी बनाया गया था, दिस वन इज कॉल्ड अ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, दिस वन इज कॉल्ड अ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कनाडा में फॉर्म हुआ था। दिस वन द नेम ऑफ दिस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इट इज अ नाउ मैंडेटरी, दिस वन मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना था ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से बचाने के लिए कनाडा में। इट इज नाउ मैंडेटरी ऑल ऑफ द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ओके, टू मेक अ CFC फ्री रेफ्रिजरेटर। तो आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं। नाउ इट्स अ मैंडेटरी, ओके, इट इज मैंडेटरी कि रेफ्रिजरेटर और एसीज को बिना CFC के बनाया जाए। ओके, नेक्स्ट वन, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, जो भी हम गार्बेज रेगुलरली अपने डोमेस्टिक घरों से निकाल रहे हैं उनको कैसे मैनेज किया जाए। ओके, 5R पॉलिसी, 5R पॉलिसी को यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दिस वन इज अ 5R पॉलिसी। 5R, रिड्यूस, रिफ्यूज, रिड्यूस, रिफ्यूज, रिड्यूस, रिफ्यूज, रिसाइकल, repurpose and recycle, repurpose and recover। ओके, तो ये 5R पॉलिसी, जो जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, गार्बेज को मैनेज कर सकते हैं। एंड यस, इन आवर डेली एक्टिविटीज वी जनरेट अ लॉट्स ऑफ मटेरियल दैट आर थ्रोन अवे, जो हम दूर फेंकते हैं। वी आर सम ऑफ दीज वेस्ट मटेरियल, व्हाट हैपन आफ्टर थ्रू दैम, उसके बाद क्या होता होगा, कलेक्टिवली इकट्ठा होता जा रहा है। दीज आर परफॉर्म एक्टिविटीज, फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज आपको दिखाई हुई है कि क्या क्या करना है। कलेक्ट द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम योर होम, दिस इज इंक्लूडिंग द ऑल वेस्ट कॉन्टेंट्स ड्यूरिंग अ डे, लाइक अ किचन वेस्ट और ये सब। तो किचन वेस्ट, एंड दिस वन इज अ बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल्स दोस कैन बी डिकम्पोज्ड बाय डिकम्पोजर्स, is called a biodegradable, biodegradable substance can be produced a compost, can be produced a manure, okay, can be utilized as a manure to plants, ठीक है। एंड वेस्ट पेपर, मेडिसिन, आई मीन मेडिसिन बॉटल्स और इन सब का क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। This material has been put in a school garden. If there is a no space available, you collect the material in an old basket, flower pot, and cover it in a 15 centimeter of soil. क्योंकि ये सारे क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। ओके, इफ question arise, leather is also a biodegradable, animal की स्किन से बनी होती है। Keep it material moist and observe 15 days interval, क्या बन के तैयार हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। ये डिकम्पोज किसने किया, डिकम्पोजर्स ने किया। डिकम्पोजर्स का एग्जाम्पल, बैक्टीरिया एंड फंजाई आर द डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई आर द डिकम्पोजर्स। ओके, phenomena is the decomposition,
Lots of bacteria and fungi are the decomposers. ओके, डिकम्पोजर्स को हाई टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, ये प्रोसेस कर देंगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस से सिंपल इनऑर्गेनिक कन्वर्ट कर देंगे। व्हाट आर द मटेरियल रिमेन अनचेंज ओवर अ पीरियड? कौन से मटेरियल अनचेंज रह जाएंगे? प्लास्टिक बॉटल्स, ओके, एंड स्ट्रिप, बबल पैक क्योंकि पॉलिथीन है, एंड ओल्ड एंड torn clothes also, and broken footwears if it's a leather, तो डिकम्पोज हो जाएंगे। अगर प्लास्टिक है तो नहीं होगा। फिर प्लास्टिक इज अ पॉलीमर, ओके, इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल। व्हाट इज अ मटेरियल कैन बी चेंज देयर फॉर्म इन अ स्ट्रक्चर ओवर अ टाइम? क्या बन गए? इनऑर्गेनिक कंटेंट बन गए। ऑल ऑफ द मटेरियल आर चेंज विच डज चेंज द फास्टेस्ट? किसने इसको चेंज किया है फास्टेस्ट? डिकम्पोजर्स ने चेंज किया है, लाइक अ बैक्टीरिया एंड फंजा। नेक्स्ट वन is a last part of this chapter, and here we have seen in a chapter life process that the food we eat is digested by a various type of enzyme in our body, ठीक है? And have you ever wondered why a same enzyme does not break down everything we eat? हर एक कंटेंट के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए लाइपेज, मीन कार्बोहाइड्रेट के लिए हमारे पास एमाइलेज है, एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज और पैनक्रियाटिक एमाइलेज। फैट के लिए लाइपेज, बाइल जूस, और आपका प्रोटीन के लिए पैप्सिन, ट्रिप्सिन। तो ये सब एक इंडिविजुअल एंजाइम्स एक इंडिविजुअल फूड कंटेंट पे एक्ट कर रहे हैं। द एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। स्पेसिफिक एंजाइम are need to for a break down a particular substance। एक एंजाइम एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को ही ब्रेक करेगा, ऐसा नहीं होगा कि एक एंजाइम सबको ब्रेक कर दे। दैट इज वाई वी विल नॉट गेट एनी एनर्जी इफ ट्राई टू ईट कोल, ओके। इफ वी ईट कोल, कुछ भी खाने से हमें एनर्जी नहीं मिलेगी क्योंकि उसके एंजाइम ही हमारे बॉडी में नहीं होंगे। बिकॉज ऑफ दिस मैनी ह्यूमन मेड मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक्स will not be broken down by the action of bacteria। इसलिए बैक्टीरिया के पास एंजाइम ही नहीं है कि जो प्लास्टिक को डिग्रेडेट कर पाए। और अदर सैप्रोफाइट्स के पास भी, जैसे फंगस, इसके पास भी एंजाइम नहीं है कि ये प्लास्टिक को डिग्रेडेट कर पाए। दीज मटेरियल विल बी एक्ट अपॉन अ फिजिकल प्रोसेस। तब इनके लिए हम क्या कर सकते हैं? फिजिकल प्रोसेस अप्लीकेबल करनी होगी, जैसे कि हीट करना, बर्न करना, हाई टेम्परेचर पे बर्न करना, इसको इंसिग्नेशन कहते हैं, हाई प्रेशर में बर्न करना, बट अंडर द एम्बियंट कंडीशन फाउंड इन अ एनवायरमेंट दिस परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, okay। Substances that are broken down by the biological process is called a biodegradable। क्वेश्चन मिल सकता है, what is a biodegradable? those substances are broken down by a biological process or by the decomposers is called a biodegradable। how many of the substances you burned were biodegradable? Substances that are not broken down in this manner are said to be a non biodegradable, ठीक है। जो नहीं हो रहे डिग्रेडेड उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलेंगे। दीज सब्सटेंसेज में बी इनर्ट एंड सिंपली परसिस्ट इन द एनवायरमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम और मे हार्म द वेरियस मेंबर ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है। तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं डिकम्पोज तो होंगे नहीं और इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाएंगे, ओके। नेक्स्ट वन, दीज आर द एक्टिविटीज एंड visit any town and city, we sure found a heaps of a garbage collectively दिख जाएगा आपको all over the place। visit any place tourist interest, we sure to find that is a place littered with empty food wrappers, okay, जैसे ही इधर उधर फेंक देते हैं person। in the earlier classes we have talked about the problem of dealing with the garbage that we generate। let us now look at the problem a bit more deeply। अपने अराउंड आप देखेंगे ये प्रॉब्लम इज मे बी बिकम अ मोर और अब बन चुकी भी है, ओके। तो डिस्पोजल कप और यहाँ के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। इम्प्रूवमेंट इन आवर लाइफ स्टाइल हैव अ रिजल्ट इन अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ अ वेस्ट मटेरियल जनरेशन।
चेंज इन एटीट्यूड ऑल्सो हैव अ रोल टू प्ले, हमें अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। एंड और हर एक इंडिविजुअल अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो सब कुछ यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। विल विद मोर एंड मोर थिंग्स वी यूज बिकम डिस्पोजेबल, and change in our packaging have resulted in a much our waste becoming non biodegradable substances। पैकिंग रैपर्स ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। एंड व्हाट डू यू थिंक विल बी इम्पैक्ट ऑन दीज इन आवर इन्वायरमेंट, इसका क्या हमारे इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा होगा। तो यहाँ पे एक ये भी चीज़ दी हुई है, डिस्पोजेबल कप और कुल्हड़ के बारे में दिया हुआ है। कुल्हड़ इज मेड बाय अ टॉप फर्टाइल लेयर्स ऑफ सॉइल, दिस वन इज मेड बाय अ टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल। तो टॉप फर्टाइल लेयर्स को हटा के फिर कुल्हड़ बनाए जाते हैं। तो कुल्हड़ इज मोस्ट इफेक्टिव, या फिर पेपर कप्स, पेपर कप्स इज मेड बाय अ पेपर एंड दिस कैन बी डिस्पोजेबल इजीली, जल्दी डिस्पोज हो जाते हैं। नाउ डिस्पोजेबल पेपर कप्स आर बीइंग यूज। So what do you think are advantages of the paper cups over a disposable plastic cups? Plastics are the non-biodegradables. Cooler is made by a top fertile layer and degradates slowly. Okay, slowly degrade होने में, mix होने में time लगता है इसको soil में। The introduction of the disposable cup held a step forward for a reason of hygiene. ओके, क्यों ऐड किए गए थे डिस्पोजेबल कप्स, मीनिंग ऐड हाइजीन, कि एक बार एक ही पर्सन यूज कर पाए इसको। नो वन एट अ टाइम परहैप्स थ्रू अबाउट द इम्पैक्ट कॉज्ड बाय अ डिस्पोजल ऑफ मिलियन ऑफ अ कप्स इन अ डेली बेसिस। डेली बेसिस मिलियन ऑफ अ कप्स बाहर निकलते हैं और ये अर्थ पे पॉल्यूशन कॉज कर रहे होते हैं।